Many thanks. You're tuning in to a very special broadcast right here on In Your Interest on News 9. You see, India's boxing contingent has delivered its finest ever performance at the Commonwealth Games. We're talking about a record 10 medals. From those 10 medals, an unprecedented 10, 7 gold medals, if I'm not wrong. And perhaps Yes. no story has been more remarkable than Sakshi Chaudhary's. Because for Sakshi, the hardest fights, they weren't even in Glasgow. Let's not underestimate what happened in Glasgow, some very serious bouts, but most of those hard battles were fought back here at home in Patiala. She had to beat two world champions just to make it to India's team. Then she went on to Scotland, did not lose a single bout on the judges' scorecards, ending the incredible 68 fight winning streak of England's Ruby White in that final. And from Bhiwani to Glasgow, from Sakshi's own injury setbacks to Commonwealth champion and standing on top of that podium with the tricolour, Sakshi Chaudhary joins us live and exclusive from Glasgow. Many thanks, Sakshi, for taking out the time. Thank you, sir. Sakshi, first and foremost, I must ask you, when that final bell rang, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? What went through your mind? आपकी जितनी भी तस्वीरें देखी, जिन लोगों ने भी लाइव मैच देखा, आपकी स्माइल से पता चल गया था कि आपको पता चल चुका है कि गोल्ड मेडल आप ही की तरफ आने वाला है. Yes. After the bell rings, my focus was only on my opponent. That what I have to do in the ring, not in the Hmm. surroundings. So it was like I have to give my all out in the ring and have to win gold medal for the country. I was not looking that she has won 64 bouts so far and haven't lost any single of that. My focus was only that I have to give my best and win gold medal for my country. And this was so important for me as I have gone through very tough trials in the for the selection in Commonwealth Games. I Yes. fought with Nikhat Zareen, Meenakshi Huda. Both are very good boxers and both were world champions. Yeah. So after that, I have to prove that I am also best at the international level too. So this goal was must for me. I was so hungry for this gold medal. तो अब आपकी भूख थोड़ी सी भी मिटी. uh, a little bit, but now I have next target fixed in my mind, that is Asian Games and then Olympics. अगले टारगेट पे भी आऊंगा, मैं अगले टारगेट पे भी आऊंगा, लेकिन मैं एक बारी आपसे मतलब बाउट बाय बाउट अगर जाऊं, क्योंकि आपके पास बोत्सवाना की लिथाबो थी, एक्सपीरियंस बॉक्सर हैं. केटलिन फ्रायर्स थी, शी इज ऑल्सो अ वेरी एक्सपीरियंस बॉक्सर. स्ट्रैटेजी क्या रही क्वार्टर फाइनल में जब आप चली गई, उसके बाद कनाडा की एम्बर जेन वॉल के साथ आपकी बाउट हुई, जब आपने उनको यूनानिमसली हरा दिया, तो क्या आपको लगा कि भाई अब तो ये गोल्ड मेडल मेरे पास ही आने वाला है? और वो After 68 मैच का जो स्टैटिस्टिक था, क्या वो आपके दिमाग के साथ कुछ खेल रहा था? वाज दैट प्लेइंग अ ट्रिक ऑन योर माइंड? like boxing is not only physical sports, it's also how we take the things to our mental level. So I didn't focus on the things that she has won these bouts and those. I just focus in the ring and that I have my opponent, I in the ring and have to give my all out. Okay, okay. You know, Sakshi, this, I mean, of course, गोल्ड मेडल अपनी जगह एक बहुत ही काबिल तारीफ मेडल आपको मिला है, लेकिन ये आपका पहला मेडल बिल्कुल भी नहीं है. आपने पहले लेकिन भी ये मेरे कई, गेम्स का पहला मेडल है, जैसे कि हाँ, मैं गेम्स फर्स्ट का पहला बाउट मेडल में है. आप गई इमोशनली इस चैंपियन। गोल्ड मेडल को कहाँ रैंक करेंगी? मैं अब तक इसको टॉप पे रैंक करूंगी क्योंकि ये गेम्स हम्म. का मेरा पहला गोल्ड मेडल था, तो मेरे लिए ये ड्रीम था कि मैं गेम्स में गोल्ड मेडल जीतूं। और अभी ये स्टार्ट हुआ है, अभी आगे भी मुझे बहुत कुछ करना है। तो विलेज जैसे पूरे पूरे कैंपेन में, पूरे कैंप में किस तरीके की वाइब रही? क्योंकि देखिए, प्रीति पवार भी मेडल जीत के आई, आपने भी मेडल जीत लिया, इस बारी रिकॉर्ड हॉल हुआ मेडल का, तो पूरे कैंपेन और पूरा कंटिंजेंट में किस तरीके का एटमॉस्फेयर और बिलीफ था? हमारी जो सेमीफाइनल बाउट्स थी वो 10 बाउट्स थी इंडिया की, और हमने एक बाउट भी नहीं आ रही सेमीफाइनल वाले दिन। तो मतलब जो हमारा जोश था वो बिल्कुल टॉप पे था कि इंडिया इज द बेस्ट। तो फिर हमें वही जो हमारा मोमेंटम था वो फाइनल में भी कंटिन्यू रखना था। तो हम्म. और हमने गुड स्टार्ट किया और फिर बैक टू बैक हम 7 गोल जीते। और जबरदस्त हमारी जो परफॉर्मेंस, इंडिया की जबरदस्त जो परफॉर्मेंस. रैंकिंग थी ओवरऑल टैली पे वो 4th पे पहुंच गई। तो हम बहुत प्राउड है हमारी परफॉर्मेंस को लेके। तो मतलब जब 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 विलेज के बीच में से आप सब चल रहे हैं अपना अपना मेडल लेके, मतलब एक अलग ही, जिसे कहता है ना, एक अलग ही रौला होता है, एक अलग ही चौड़ होती है, आजकल जनजी उसको ऑरा बोलते हैं. हाँ विलेज में जी। जब भी इंडियन बॉक्सर्स चल रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरीके से मतलब दबदबा बना रहना चाहिए, उस तरीके की जी, हम फीलिंग.
हम होटल में आए ना तो सबने हमारा क्लैपिंग्स के साथ स्वागत किया। तो मतलब सब ये देखते कि ओह! ये बॉक्सिंग से अभी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो मतलब एक अलग ही वाइब्स थी। और मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी, हमारे जो फेडरेशन है उनकी वज़ह से ये पॉसिबल हो पाया है। अभी फेडरेशन के बहुत सारे मेंबर्स आए हमें यहाँ सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसा हमें फ़ील ही नहीं हुआ कि हम इंडिया से बाहर खेल रहे हैं। मतलब बहुत ही हमारे लिए इंडिया इंडिया जितनी स्कॉटलैंड के लिए भी नहीं चीयर हो रही थी, जितनी इंडिया के लिए हो रही थी। तो हमें उससे भी काफ़ी जोश मिल रहा था। बॉक्सिंग अरीना के बारे में भी कुछ बताइए। जब आप जीत गई आपकी क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल बाउट्स पे, इतने इंडियंस वहां पर है, ये तो जाहिर सी बात है, यूके, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, हर जगह इंडियंस तो एकदम भरे पड़े हैं, लेकिन बॉक्सिंग अरीना को भी घर जैसा बना लेना, ऐसा लग ही नहीं रहा था अवे बॉक्सिंग फाइट एरिना है। को वही मैं बोल रही हूँ कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इंडिया से बाहर हमारा कंपटीशन चल रहा है। बिल्कुल इंडिया, 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 इतना जोश आ रहा था हमें। और सिर्फ जो स्कॉटलैंड में इंडियंस है वो नहीं, इंडिया से भी आए हमारे फेडरेशन के मेंबर अजय सर, प्रमोद सर, अरुण मलिक सर, सबने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मतलब अब पार्टीज हो चुकी हैं कि अभी पार्टीज और होना बाकी हैं? अभी हमारा कल डिनर था, तो वो काफ़ी हम्म। स्पेशल था। हमारा इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर था और हमें इतने दिन के बाद इंडियन खाना मिला। मैं तो वैसे भी वेट कट कर रही थी 3-4 केजी, तो मतलब इतना नहीं खाती थी मैं। कल मैंने पेट भर के खाना खाया। जबरदस्त, जबरदस्त। इन सवालों पर भी आऊंगा। चलिए, आपकी गोल्ड मेडल की तो हमने बातचीत कर ली। यहाँ पर कितना प्राउड है देश वाले, वो भी आपको पता ही चल गया होगा आपके सोशल मीडिया पे। लेकिन एक बारी मैं उस पर भी टच करना चाहता हूँ। आपने खुद जिक्र किया निखत जरीन का, बहुत ही काबिल तारीफ बॉक्सर अपने आप में, वर्ल्ड चैंपियन, कॉमनवेल्थ में यही डिफेंडर होती अगर आके आज बाउट लड़ती। और दूसरी तरफ मीनाक्षी हुड्डा का भी आपने नाम लिया, 5-0 से आपने उनको उस बाउट में हराया, पटियाला में जो ट्रायल्स हुए। मैं इसको साक्षी चौधरी वर्सेस निखत जरीन या साक्षी चौधरी वर्सेस मीनाक्षी हुड्डा नहीं बनाना चाहता, लेकिन लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि क्योंकि आपने निखत जरीन और मीनाक्षी को हरा दिया, द फाइट इन ग्लासगो वाज मच मोर इजियर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल सही है। मतलब अगर मेरे वेट कैटेगरी में इतना कॉम्पिटिशन है इंडिया में ही, और मतलब बाहर इतना नहीं है, तो मतलब हम वहाँ से आ रहे हैं इतना कॉम्पीट करके हमारे होम ग्राउंड पे, तो यहाँ हमें थोड़ी हेल्प मिलती है कि मतलब हम पहले से ही इस लेवल तक प्रिपेयर हैं। मतलब जो हमें चाहिए लेवल उससे भी ऊपर हम, इंडियन मतलब काफ़ी ट्रायल्स हेल्प। मतलब कॉमनवेल्थ अगर गेम्स से इंडिया में, ज्यादा टफ थे। जी बिल्कुल, मतलब दोनों ही जबरदस्त। टफ थे लेकिन वो भी टफ था। आपने अपने वेट कट की बात की, कल आपने पेट भर के खाना भी खाया, उस पर भी हुँ। बात करूंगा आपसे, लेकिन 54 केजी जो आपका फेवरेबल वेट कैटेगरी है, वहां से 51 केजी में आ जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि कितना डिफिकल्ट है वेट को कट कर लेना। यू लूज आउट ऑन योर मसल्स, यू लूज आउट ऑन योर स्ट्रेंथ, यू लूज आउट ऑन योर एपिटाइट, एंड मेंटली ऑल्सो ये बहुत चैलेंजिंग होता है। थोड़ा सा जी, उस जर्नी के बिल्कुल। बारे में भी बताइए, कैसे 54 से 51 इतनी आसानी से भाई? मतलब तब मैंने डिसाइड किया, उस टाइम पे मेरा वेट 55 पॉइंट समथिंग चल रहा था। हम्म। लेकिन मुझे बहुत भूख थी कि सिर्फ़ एक ही वेट कैटेगरी बची है जहाँ मैं कम्पीट कर सकती हूँ, मैं उसको गँवाना नहीं चाहती थी। तो मैंने अपना पूरा तन, मन, धन सब लगा दिया कि मैं मतलब बस यहाँ तक जाना है। शुरू में इनिशियल डेज़ में काफ़ी मुझे मुश्किल आई वेट कम करने में, इतना भूखा रहना पड़ता था, फिर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। और शुरू में मैं घर पे थी तो मम्मी, नहीं, नहीं, ये तो खा ही ले, ये तो थोड़ा-सा खा ले, इससे क्या ही वेट बढ़ेगा। मतलब ये घरवालों को भी ये बोलना कि मैं नहीं खाऊँगी, ये भी एक स्ट्रगल था। मतलब उनको और लगता घर था के कि खाने को, हाय! घर के उस स्वीट डिश को, और घर के मतलब उसको मना करना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब तब और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं भूखी हूँ, मैं कुछ खा नहीं रही, फिर मम्मी और पापा बोलते हैं, "ये तो खा ही ले, इससे क्या ही होगा?" मैं बोलती हूँ, "मत पूछो प्लीज़, मुझसे मत पूछो क्या खाना है, मैं अपने आप खा आप लूँगी।" अब आप मेडल लेके जब जाएंगी तो फिर उनको पता चलेगा कि आप किस लिए मेहनत कर रही थी, किस तरीके की जी, मेहनत थी। लेकिन बिल्कुल। जब ये वेट कट करती हैं साक्षी, तो स्ट्रेंथ में, स्पीड में, कॉन्फिडेंस में, मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे आपकी कुछ वर्कआउट की वीडियोस, आप प्लायोमेट्रिक्स पे बहुत फोकस कर रही हैं, एजिलिटी और मूवमेंट पे भी बहुत फोकस है। इतना शैडो वर्क का वीडियोस नहीं दिख रही थी यहाँ पे, शायद आप डाल नहीं रही थी, बाकी ओपोनेंट्स ना देख लें, समझ ना ले टेक्निक क्या है। लेकिन किस तरीके से आपने स्पीड मैनेज की, अपनी स्ट्रेंथ भी मैनेज करी? स्पीड तो हम वेट कम करते हैं तो स्पीड तो इंक्रीज़ हो जाती है, स्ट्रेंथ को थोड़ा-सा मेंटेन करके रखना पड़ता है क्योंकि मसल्स तब लूज़ होती हैं तो स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है। तो उसको थोड़ा-सा मेंटेन रख किया मैंने, और स्पीड तो वैसे ही बढ़ जाती है तब हम वेट कम करते हैं, बॉडी में वेट कम हो जाता है। तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होता है, मैं 51 में खेलती हूँ तो 54 से। अच्छा तो लगेगा ही। आई कांट से द सेम अबाउट योर इमीडिएट कंटेस्टेंट्स जिनको आप पीछे छोड़कर गई वहां पे। लेकिन अब जब आप मेडल लेकर आ चुकी हैं तो भाई उनकी भी आपने बोलती बंद कर ही दी है। आप आर्मी एथलीट हैं,
साक्षी, जी, आर्मी जी, ने भी आपको बहुत शेप किया आपकी लाइफ में। बिल्कुल। आपकी इंजरी हो गई थी, आई थिंक शोल्डर की इंजरी थी इफ आई एम नॉट जी, रॉन्ग। अब जी, उससे जी। आपको, लोगों को लगा कि भाई करियर डीरेल हो गया, लेकिन अचानक से 2021-2022 के बाद जिस तरीके से आपने चेंज किया है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या चेंज हुआ। कोच के चेंज होने से जरूर फर्क पड़ता है, लेकिन आपने अपने अंदरूनी क्या चेंजेस किए, व्हाट एग्जैक्टली चेंज फॉर साक्षी चौधरी एसेंशियली। कर्नल मनोज कुमार सर हैं, वो मुझे आर्मी में लेके गए, मतलब उन्होंने मुझे गाइड किया। फिर आर्मी में मतलब एक इंडिया की बेस्ट ट्रेनिंग होती है और हम एक वुमेन जो बॉक्सर है वो बहुत कम है। तो हमारे ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाता है, हमारे स्पारिंग पार्टनर भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस मिलते हैं, हमें लड़कों के साथ हम फाइट करते हैं। फिर हम लड़कियों के साथ तब फाइट करते हैं तो हमें बहुत ईज़ी फील होता है। और जो आर्मी की फिटनेस लेवल है, उसका तो फिर कोई मुकाबला ही नहीं कर पाता। तो इस तो मतलब तरीके से आर्मी ने आर्मी ने भी बहुत आपको शेप कुछ। किया, आर्मी को भी जी, आप बिल्कुल। थैंक्स देना चाहेंगी। आर्मी को बहुत बड़ा थैंक्स देना चाहती हूँ मैं कि मतलब मेरे करियर में उन्होंने इतनी हेल्प की मुझे कि मैंने आज कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। अपने कोच के बारे में भी कुछ बताइए, आपके कोच ने किस तरीके से गेम चेंज कर दिया बिल्कुल। जी। अभी फ़िलहाल मतलब हमारे आर्मी के कोचेज़ हैं शामू सर, छोटे सर और मेरे बेसिक कोच जगदीश सर हैं। फिर अभी कैंप में सेंटियागो सर हैं। सेंटियागो सर मतलब बहुत ही अच्छे कोच हैं। उनकी जो टेक्निक्स हम्म। है ना, वो एक अलग ही लेवल की हैं। तो वो काफ़ी सूट कर रही है मेरे गेम को। तो उससे भी मुझे काफ़ी तो आपके इम्प्रूवमेंट पास मिला है। घर से जुड़े हुए अपने घर के कोचेस भी हैं, आपके पास इंटरनेशनल और यूरोपियन स्टैंडर्ड वाले कोचेस भी हैं, मतलब इस सबका मिक्सचर आपको मिल रहा है, जिसमें आर्मी भी है, जिसमें छोटे सर भी हैं, जिसमें आपके डिएगो सर भी हैं, और फाइनली अब जी, आपके जी। हाथ में मेडल भी है, वो सब बहुत आराम से। आपको पता है आपके साथ साथ आपके सारे कोचेस भी बहुत आराम से सोए हैं। लेकिन जी, आ, बिल्कुल। कल तो भिवानी की भी हमारी बात कर लूं अगर मैं। बैक टू बैक बाउट्स थी हमारी। कल तो हमारे कोचेज़ को तो बिल्कुल ही इतना स्ट्रेस हो रहा था। सबको रेडी करना है, फिर वापस आना है, फिर नेक्स्ट बाउट है। भिवानी को कहा जाता है बॉक्सिंग का एपी सेंटर, बॉक्सिंग का नर्व सेंटर है। मिनी वहां से क्यूबा। कितने सारे आइकॉन्स निकले हैं। तो आप जी, अपने आप को लकी समझती हैं कि आप भिवानी में, आपका जन्म हुआ, भिवानी से आप जुड़ी हुई बिल्कुल। हैं। भिवानी की हवा में कुछ अलग है भाई, भिवानी के लोग अलग से कुछ खाते हैं, वहाँ के कल्चर में कुछ अलग बातें है। भिवानी की बात क्या है, क्या है सो स्पेशल अबाउट भिवानी। भिवानी का जो कल्चर है मतलब ये बोल सकते हैं कि कोई भी बॉक्सिंग स्टार्ट करता है, एक माहौल है वहाँ पे बॉक्सिंग स्टार्ट करने का, फिर बॉक्सिंग खेलने का। इतनी सारी हमारी भिवानी में 20-30 तो बॉक्सिंग क्लब्स होंगे। तो हम इतनी ट्रेनिंग करते हैं तो परफॉर्मेंस तो हमारी आ ही जाती है। हम अभी 5 जने थे भिवानी से जो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे कॉमनवेल्थ गेम्स में और हम पाँचों ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भिवानी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है। आपने कभी सोचा था अब आप किसी के कंधे पे बैठ के भिवानी वापस जाएंगी, ढोल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, भिवानी का भाई बॉक्सिंग चैंपियन वापस आ रहा है। जी, बिल्कुल इसी उम्मीद से मैं यहाँ आई थी कि मुझे गोल्ड मेडल जीतना है। जबरदस्त, जबरदस्त। विजेंद्र सिंह आपके रोल मॉडल है, मैं कहीं पढ़ रहा था। विजेंद्र सिंह आपके आइकॉन रहे हैं, उन्होंने आपको किस तरीके से इंस्पायर किया। वही मैंने बॉक्सिंग की जो शुरुआत की थी वो उनको देख के ही की थी। क्योंकि 2008 में उनका बीजिंग ओलंपिक में मेडल आया, उसके बाद से तो बॉक्सिंग में भिवानी और भी टॉप पे आ गया है। हम्म। और मैं जब छोटी थी तो मेरी जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा रहती थी। मैं किसी मतलब स्कूल में भी फर्स्ट आती थी। फिर मतलब शरारती हम थी आप शरारती शरारती थी थी मैं। आप, ये जी, कहना चाह बिल्कुल, रही हैं। बिल्कुल। फिर पापा ने सोचा कि मेरी जो एनर्जी है उसको थोड़ा-सा पॉजिटिव वे में चैनलाइज़ करते हैं। मेरी बुआ जी का कज़न है विनीत बेनीवाल, वो भी बॉक्सिंग खेलते थे। 1-2 साल उन्होंने पहले खेली है। फिर जी। वो आए, उन्होंने बोला कि चल तू पुशअप मार के दिखा। तो मैंने तो मार दिए 5 पुशअप, बोले वेरी गुड, चल तुझे बॉक्सिंग छोड़ के आते हैं। तो वो भी मुझे 5 गाइड पुशअप करते से रहते हैं। अब 5 मेडल होने हैं साक्षी, ये पूरे 5 मेडल्स होने, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एलए ओलंपिक्स आने वाला है, और कॉमनवेल्थ का तो आपने अपना बॉक्स टिक कर ही दिया है ऑटोमेटिकली। एक बारी, लोग जानना ये भी चाहते हैं कि भाई द पर्सन बिहाइंड द चैंपियन, हु इज साक्षी चौधरी बिहाइंड द चैंपियन। आप बहुत डिसिप्लिन्ड एथलीट हैं, लोग इसके बारे में लिखे चले जा रहे हैं, आपने किस तरीके से अपनी जर्नी बदल दी। कॉमनवेल्थ का गोल्ड जीत लिया अब आपने। जीतने के बाद सबसे पहली चीज आपने क्या खाई। अगर एक चीट मील आपको दिया जाता, आप कैलोरीज नहीं काउंट कर रही होती, तो आप क्या चीज ऑर्डर करती। मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है। अभी मतलब पहले मैं कोल्ड कॉफ़ी पीती थी तो मैं 54 केजी में थी। लेकिन अभी 51 में मैं फिर ब्लैक कॉफ़ी पीती थी। तो सबसे पहले मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी। आइसक्रीम के साथ, कोल्ड कॉफी विद जी, आइसक्रीम। जी। कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। क्योंकि आउटसाइड, उसमें बहुत आउटसाइड। कैलोरीज़ होती हैं तो या वो तो मैं पी नहीं सकती अगर मैं मुझे वेट कट करना है तो। हाँ,
बट अब तो भाई अब वेट कट थोड़े करना है, लेकिन कुछ चीजें आदत जी। में तब्दील हो जाती हैं. सो डिड यू आफ्टर द मैच, व्हाट वाज योर मील, व्हाट डिड यू एंजॉय, डिड यू ऑर्डर समथिंग स्पेशल इन योर होटल रूम? अ, हम इंडियन रेस्टोरेंट में गए थे पूरी टीम हमारी, और वहाँ पे हमने इंडियन खाना खाया। वो एक पंजाबी रेस्टोरेंट था, तो हमें सब्जी मिली, पनीर की सब्जी मिली, मतलब अलग-अलग वैराइटीज़ थी सब्जी की, लस्सी मिली, नान मिले, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें वो ओ खाना खा के, शाबाश. पेट भरा। हाँ, पेट भर के खाना खाया. आउटसाइड बॉक्सिंग, पता है, सारे एथलीट्स होते हैं. लोग कहते हैं माइकल फेल्प्स अलग तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते थे. अब हर एथलीट का एक अलग तरीका होता है अपने आप को प्रिपेयर करने का, लेकिन रिलैक्सेशन उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है. रिलैक्सेशन का मतलब ये नहीं कि भाई लेजी होके लेट गए कहीं पे या सो लिए. रिलैक्सिंग इज ऑल्सो एन एक्टिविटी. आउटसाइड बॉक्सिंग, हाउ डज साक्षी चौधरी रिलैक्स हरसेल्फ, इस पर भी थोड़ी सी लाइमलाइट डाली जाए. मुझे पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर पे टॉम है, बिल्ली, हम्म. फिर मोती है, वो मेरा डॉग है, तो मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब कोई भी स्ट्रेस होता है, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, तो सब चला जाता है। बाउट से पहले भी मैं वीडियो कॉल करती हूँ मम्मी-पापा के पास, मतलब किसी भी टाइम करती हूँ, टॉम क्या कर रहा है मम्मी, मोती क्या कर रहे हैं, उनको हेलो करती हूँ। उन उन्होंने उन भी उनके आपको बारे में ब्लेसिंग्स दी पूछती हूँ, होंगी. उनको खाना टॉम एंड मोती खिलाया? भी लगे थे पीछे से आपकी जी, हूटिंग और चीयरिंग करने के लिए. बिल्कुल। तो उनकी भी याद आती होगी अब जब वापस भिवानी जाएंगी तो सबसे पहले उनसे भी गले मिलेंगी कि रिश्तेदार भी होंगे आगे, फैंस भी होंगे आगे कि नहीं भाई मुझे पहले टॉम और तो मोती से मिलवाओ सबसे सारी पहले. फैमिली वाले एयरपोर्ट पे ही मिल जाएँगे, लेकिन वहाँ हाँ. टॉम और मोती नहीं होंगे, फिर घर जाके उनसे मिलूँगी। बहुत खूब, बहुत खूब. पता है, बहुत सारी बॉक्सिंग की मूवीज और पिक्चर्स भी हैं साक्षी. लोग रॉकी देखते थे बैक इन द डे. फिर अपोलो और क्रीड आई, क्रीड वाली मूवीज आई जिसमें माइकल बी जॉर्डन थे. फिर मैरी कॉम पर पिक्चर बनी, आई थिंक प्रियंका जी, चोपड़ा ने उसमें एक्टिंग करी. जी, जी। अ, तो ये फेवरेट आपकी अगर बॉक्सिंग मूवी के बारे में पूछूं, व्हाट इज योर फेवरेट बॉक्सिंग मूवी, या फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और वो है मेरा नहीं, स्ट्रीम और मैंने जॉनर? ऑनेस्टली बताती हूँ, और कोई मूवी नहीं देखी है, मैंने सिर्फ मेरी कॉम ही देखी है। तो वो हाँ. देख के मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला कि मतलब मतलब कहाँ से उठ के उन्होंने कहाँ तक का सफ़र तय किया है। तो तो उनसे ठीक काफ़ी है, मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग इंस्पायर होती समथिंग हूँ। अलोंग दिस लाइंस कि भाई सिल्वेस्टर स्टेलोन कैन गो, माइकल बी जॉर्डन कैन हुँ। गो अवे. हम तो भाई मैरी कॉम एंड प्रियंका चोपड़ा इज गोइंग टू बी आवर डिसीजन. अब जी, डू यू जी। लिसन टू एनी म्यूजिक बिफोर द फाइट? बहुत सारे लोग म्यूजिक प्रेफर करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो म्यूजिक बिल्कुल प्रेफर नहीं करते हैं. आप कौन से स्टाइल की बॉक्सर हैं? मेरा मिक्स्ड रहता है। कभी-कभी मैं हम्म. सुन लेती हूँ, कभी-कभी मतलब अभी फ़िलहाल तो प्रिया मैम है मेरी साइकोलॉजिस्ट, जो जनवरी से मेरे साथ काम कर रही हैं। तब से मतलब जी. वो मेरी लाइफ़ में आई हैं, तो काफ़ी चेंज हो गया है मेरा गेम। तो वो मुझे काम रहने के लिए वो करती हैं, तो मैं मेडिटेशन करती हूँ, ब्रीथिंग वाह. करती हूँ। ये सब रहता है मेरा अभी, जो अबाउट से पहले का शेड्यूल रहता है, डायरी लिखनी होती है, मिरर मतलब आप, टॉक्स होती अच्छा, है। आप डायरी भी लिख रही हैं बाउट से पहले? जी, जी। तो मतलब मैं अगर मैं पहले आपसे, आई नो दिस इज बिकमिंग लिटिल पर्सनल, लेकिन फाइनल रूबी वाइट के मैच से पहले आपने डायरी में क्या एंट्री करी, उसका एक संक्षेप वर्णन देना चाहेंगे या? मैंने अभी मतलब इसी कॉम्पिटिशन में स्टार्ट किया था, जैसे कि जो भी मैंने ये सोचा कि मैं रिंग में जाऊँगी, ऐसे मैं वार्म अप करूँगी, उसके बाद मैं रिंग में जा रही हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसे लिखती हूँ मैं प्रेज़ेंट टेंस में। या. उसके बाद फिर मैंने ऐसे खेला, उसको डिस्टेंस से मैंने मेंटेन किया, लेफ्ट-लेफ्ट से मैंने स्कोर्स लिए, फिर हर राउंड का डिसीज़न 5-0 5-0 आता रहा, फिर मैं वाओ. जीत गई। मतलब यही पूरा मैं पहले स्क्रिप्ट करती हूँ, बाउट में जाने से पहले। मतलब आपने अपना गोल्ड मेडल जीतने से पहले ही स्क्रिप्ट कर दिया था. तो आप जी, हमको जी। बता देते, हम एज ए न्यूज चैनल उसको पहले ही हाईलाइट करके पहले ही चला देते, आपकी मैच से पहले ही हम बोल देते साक्षी चौधरी विंस गोल्ड. हालांकि हमें इस बात में कोई भी डाउट नहीं था कि आप गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं. आपकी जिस तरीके से हम बाउट्स देख रहे थे फ्रायर्स के साथ, जिस तरीके से एम्बर हॉल के साथ हमने आपकी फाइट देखी, हमें पता था कि ये तो आने ही वाला है 100%. दिस इज व्हाट हम जी, लोग न्यूज रूम में बैठ के जिस ये भी प्रकार एक से हमने प्रेशर तालियां था कि बजाई हैं. सबको सबको ये लग रहा था कि साक्षी तो जीतेगी, साक्षी तो जीतेगी। फिर हम्म. कहीं दिमाग में 1% वो साक्षी नहीं जीतती, तो सबको तो ऐसा लग रहा है कि साक्षी जीतेगी। वो भी एक प्रेशर की बात थी। मैं पता है आपसे बस फाइनल दो तीन सवाल पूछूंगा साक्षी. आपने स्टार्टिंग में इस बात का जवाब दिया था, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको आपसे थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहता हूँ कि कौन, विच ड्रीम एक्साइट्स यू द मोस्ट टुडे, एंड व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस इज बिकॉज on the cards is the Asian Games, the World Championship, the Los Angeles Olympics. Out of this, which dream excites you the most talking to you today, right now? ओलंपिक्स, ऑब्वियसली ओलंपिक्स, लेकिन उससे पहले के वो सब पाथवेज़ रहेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए, Hmm. तो सब अचीव करना पड़ेगा।
Okay, Olympics, but let's hope so, and hopefully I'm there at the Olympics to cover this personally. And आपसे मैं वहाँ पर camp में खुद मिलने के पूरी कोशिश करूंगा. Olympics is something that I also want to cover, personally on ground. My, I have a rapid fire for you, but before that rapid fire, my final question to you, and this is a little personal, this is a little emotional question, Sakshi, because you see, I can understand that you're also very emotionally charged. You have converted your emotions into actual victory. जिस तरीके से जी आपने जी। डायरी राइटिंग करी, जिस तरीके से you have your own pet peeves with your pets, you're a lover, you want to meditate, you're a mature person, you're humble. I again want to highlight to all the viewers that are watching this also कि जैसे ही रेफरी ने साक्षी का हाथ उठाया एंड यू वन द गोल्ड मेडल, एवरीबडी गोज क्रेजी. आई कैन अंडरस्टैंड, आप अंदर से एक्साइटमेंट से एकदम फूट रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप हर रेफरी के पास गई, आपने सर झुकाया, आपने बहुत विनम्रता से उनका हाथ मिलाया. एंड दैट ह्यूमिलिटी, दैट हम्बलनेस, दैट मेच्योरिटी, उससे यही दर्शाता है कि आपकी किस तरीके से परवरिश हुई है, आपकी नर्चरिंग किस हिसाब से हुई है. तो ऑन दिस नोट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से अ वेरी बिग थैंक यू टू योर पेरेंट्स, to Bhivani, to every one of your relatives, to all your coaches, to perhaps Priya ma'am as well, who's helped you in that psychological journey. If Sakshi could speak to the 12-year-old Sakshi walking into that Bhivani boxing club for the very first time, what would your message be to that 12-year-old Sakshi? What would you tell her, Sakshi? मतलब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो साक्षी से पहले ही सब कुछ इतने अच्छे से कर रही थी। मतलब शुरू से ही इतनी लगन से मैं ट्रेनिंग करती थी, डिसिप्लिन रहती थी। तो मुझे नहीं लगता कुछ कहने की ज़रूरत है वो साक्षी को। वो साक्षी Okay, पहले ही बहुत परफेक्ट खूब, बहुत खूब. थी। मेरे पास आपके पास 5 रैपिड फायर हैं, उसके साथ ये इंटरव्यू खत्म करते हैं. फेवरेट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम, साक्षी? कभी सोचा नहीं है मैंने। आज सोच तो लीजिए. मैं खुद का ही नाम ले लेती हूँ साक्षी। Let's go. I like that answer. Favorite Indian athlete? विराट कोहली। Virat Kohli. Favorite punch for Sakshi? Is it a jab? Is it a hook? Is it the जैब, uppercut? जैब, Jab. Most underrated, but most important. Early morning training or late night workout? लेट नाइट वर्कआउट। Coffee or chai? I think इसका आंसर आपने दे ही दिया. कॉफ़ी, कॉफ़ी Coffee. फॉर Is श्योर। Sakshi a mountain person or a beach person? माउंटेन। बाउट जीतने के बाद सबसे पहले आपने फोन किसको किया? पापा को। One word that defines Sakshi Chaudhary. कंसिस्टेंसी। Let's go. One opponent you'd love to face internationally. One opponent. बुयू अभी एशियन गेम्स में। Okay, all right. Well, you better be aware and keep watching. Sakshi Chaudhary is coming for you. Final question: gold for Commonwealth or gold for Olympic medal? गोल्ड फॉर ओलंपिक्स फॉर श्योर। Gold for Olympics. Sakshi, congratulations once again. Your story reminds us थैंक यू that सर। championships aren't won only on the biggest stage, but they're built through years of discipline, through setbacks, through sacrifices, through countless unseen battles, which you have inspired us. From Bhiwani to Glasgow, you've carried India's hope so splendidly. And today, you've inspired an entire generation of young athletes. You've inspired me. I'm not even an athlete, especially the young girls dreaming of stepping into that boxing ring. Many thanks for taking out the time and speaking to us here on News 9. Sakshi Chaudhary, ladies and gentlemen. Thank you so much, Sakshi. Thank you so much. थैंक यू Many सर। thanks.